Good morning, class. This is Mohammad Moeed. Today, we have to discuss about chapter number 21, collection and organization of data. In this chapter, we have to discuss about how to organize our data in a manner way. So first of all, we have to discuss about data. What is data? So data means a collection of numerical figures of some particular types of information is called data. Suppose I am giving one example to you. Suppose in your class there are 20 students. In your class there are total number of 20 students and you have to organize their heights. आपने height पहले calculate करी of all the students. Suppose one having height 141 centimeter, another having 150 centimeter, 125 centimeter, 128 centimeter, 135 centimeter, 141 centimeter, 129 centimeter, 135 centimeter, and so on. So when we organize this data, this numeric value, this numerical figures by some particular type of information is known as data. इसी को हम डेटा बोलते हैं. The collection of information. ये एक हमारा डेटा हो गया. Data is a plural word. If we are going to talk about is singular word तो हम पढ़ते हैं इसको datum. D-A-T-U-M. datum. It is a singular word और this is a plural word. तो हम इस चैप्टर का नाम पढ़ेंगे collection and organization of data, not data. Its pronunciation is data. अब second topic in this chapter is raw data. Raw data means when the data is given to you in a original form. Whenever the terms, whenever the numbers, whenever the figures, numerical figures are given to you in a original form is known as raw data. जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये raw data की फॉर्म में गिवन है मेरे पास. ठीक है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपली मैंने राइट कर दिया जैसे मुझे गिवन था, एज इट इज मैंने राइट कर दिया. तो इट इज नोन एज रॉ डेटा. सेकेंड थिंग इज दैट रॉ डेटा मीन्स ओरिजिनल फॉर्म. सेकेंड, द वर्ड इज अरे, ARRAY, that you have learned in your previous classes. Array means होता है when we arrange the data in ascending or descending form is known as array. Suppose मेरे पास ये डेटा गिवन है ऊपर, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 125, देन 128, 129, 135 टू टाइम्स है, 135, 141, 141 ये भी टू टाइम्स है, देन 150, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. आई हैव अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग फॉर्म. मैं इसको डिसेंडिंग फॉर्म में भी अरेंज कर सकता हूँ. तो द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म इज नोन एज एरे. इसी को हम एरे बोलते हैं. तो ये अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग इज नोन एज एरे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज frequency. So what is the term, what is the meaning of that term? Frequency. Frequency क्या होती है? Frequency means in any number or any numeric value is how many terms, how many times come in this term, in this question, in this data. Suppose that we having a 141, ये टू टाइम्स आया है, तो 141 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2. इट मीन्स इट हैज कम बाय 2. ये दो बार आया है हमारे पास. सिमिलरली 135 विल कम बाय 2 टाइम्स, 125 1 टाइम. तो वो नंबर उस डेटा में कितने बार आया है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. मतलब वो नंबर उसमें कितनी बार आया है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है. फिर एक वर्ड आता है स्टैटिस्टिक्स.
स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स मीन्स ये क्या है, इट इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा. जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा, उसी को हम, इसके ऊपर स्टडी करने को ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट some topics which are used in your class. First is we have to going to start tally marks table, or we can say that frequency distribution table. ये आपको फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स के नाम से भी आ सकती है एग्जाम में, टैली मार्क्स या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो तीनों का मतलब एक ही चीज है, नाम चेंज होता था इन एग्जाम कि ड्रॉ या रिप्रेजेंट द डेटा बाय टैली मार्क्स टेबल या बाय फ्रीक्वेंसी टेबल या बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो सभी का मीनिंग सेम है, तो डोंट बी कंफ्यूज. तो समझते हैं कि हाउ टू ड्रॉ दिस टेबल, हाउ टू मेक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन सम डेटा. में एक डेटा मेरे पास है, मैं उसको लिख लेता हूँ कुछ भी. 0 5 7 8 9 5 3 8 2 3 1 2 1 3 5 8 9 0. दिस इज द डेटा दैट गिवन टू मी. ये मुझे गिवन है. अब मैं हाउ टू मेक दिस, सपोज मैंने मान लिया कि दिस इज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आउट ऑफ 10. ये मार्क्स गिवन है, ठीक है. तो मैं फर्स्ट टेबल जो बनाऊंगा इसमें लिखूंगा मार्क्स. सेकेंड, इन द सेकेंड कॉलम the word comes tally marks, और in the last the word come frequency. frequency क्या होती है? the number, the occupancy of the number, या फिर the number which comes how many times, it is known as the frequency. अब marks क्या क्या है इसमें बच्चों, देखिए 0 1 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है. आई थिंक 4 को आप स्किप भी कर सकते हैं या डैश लगा देंगे उसके आगे हम. 5 6 इज नॉट टू बी देयर, 7 इज देयर, 8 एंड 9. तो दिस इज अ मार्क्स. अब आपको चेक करना है कि 0 इज हाउ मेनी टाइम्स विल कम. तो 1 and 2, तो यू हैव टू राइट हेयर 2. ये बाद में बताऊंगा मैं, पहले ये देख लेते हैं. 1 2, ये भी 2 टाइम्स है. 2 1 2, अगेन 2 टाइम्स, नो प्रॉब्लम. 3 1 2 3, ये हो गया 3 टाइम्स. Now 4 is not to be there. 5 1 2 3, it is also 3 times, no problem. 7 only 1 time here. 8 1 1 2 3 times. Now 9 1 2 times. तो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अ मार्क्स. तो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितने टाइम्स आया है. अब हाउ टू रिप्रेजेंट टैली मार्क्स टेबल. तो द मेथड टू रिप्रेजेंट द टैली मार्क्स टेबल इज दैट वी हैव now frequency tally marks table. तो we have to write tally marks table in the tally marks table like this. हम इस तरीके से लिखते हैं 1 और 2, ये भी 2 है, 1 2, ये भी 2, ये 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 एंड 1 2. सपोज कभी क्या होता है, नंबर ज़्यादा टाइम आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे इसके लिए. सपोज कि एनी नंबर कम्स मोर देन 5 और 6 7 8 टाइम्स. मान लेते हैं कि ये नंबर जो है दिस विल कम 8 टाइम्स, ये आ गया हमारा 9 टाइम्स, ये आ गया हमारा 12 टाइम्स. देन हाउ टू रिप्रेजेंट. तो हम क्या करते हैं, फॉर एवरी, ये तो 2 है, फॉर एवरी 5, जैसे 1 2 3 4 और 5 के लिए हम ऐसा कर देते हैं. तो 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस. तो इट ऑल्सो मीन्स कि जब 5 5 का टर्म आता है तो 5 5 के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5 के लिए हम ये कर देते हैं. फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो इसमें क्या होता था, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. मतलब इसको हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ सिंपलर फॉर्म.
और अगर मैं जैसे 100 नंबर्स हैं और 100 को मैं इस तरीके से राइट करूँगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, डिफिकल्ट टू कलेक्ट द डेटा। तो हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी 3 ग्रुप हो गए। 3 ग्रुप मीन्स कि ये 15 होगा, और वैसे काउंट करने में इट विल टेक टाइम। तो इट इज़ ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टैली मार्क्स टेबल, और यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और यू कैन ऑल्सो से फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फिर इसमें एक वर्ड आता है मीन, कि व्हाट इज मीन। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मीन तक, कि व्हाट इज मीन ऑफ द डेटा, मीन ऑफ द क्लास, मीन ऑफ द मार्क्स, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड मीन। तो मीन मीन्स, मीन क्या होता है समझ लेते हैं। तो मीन इक्वल्स टू, यू कैन से दैट कि इट इज इक्विवेलेंट टू एवरेज, जैसे एवरेज निकालते हैं, बट इट इज नॉट द सेम। तो मीन मीन्स होता है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स सम ऊपर आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे होना है अब थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज मेरे पे एक डेटा गिवन है 5 7 8 12 9 2, दिस इज अ डेटा, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आता है मीन। मीन होता है मीन्स द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर मतलब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल्स टू 6। तो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा, वी हैव टू रिप्रेजेंट द मीन एज x बार इक्वल्स टू 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 9 अपॉन 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एड द नंबर्स, यू गेट 10 20 29 36 and 41, 41 upon 6। now divide it, 6 6 जा 36, 5 बचा 0 लगाया, 8 जा 2 बचा 3 जा, अप्रॉक्सीमेटली दिस। तो दिस इज अ मीन। अगर सपोज दीज आर द मार्क्स, तो इतने मार्क्स ऑफ द क्लास, मीन मार्क्स ऑफ द क्लास। अब मीन मार्क्स होता क्या है, एक सिंपल वे में समझ लेते हैं। सपोज इन योर क्लास वन स्टूडेंट गॉट 0 मार्क्स एंड अदर स्टूडेंट गॉट 10, और रिमेनिंग स्टूडेंट 5 7, लाइक दीज टाइप ऑफ मार्क्स दैट गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द मार्क्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्लास जो है किस लेवल में, किस उसका क्राइटेरिया क्या है। ना तो क्लास ये बहुत अच्छी है, अगर बहुत अच्छी होती तो सभी के 10 या 9 मार्क्स आते हैं, ना ही ये बहुत ख़राब है, बहुत खराब होती है तो सबके 0 आते हैं। तो ये किस लेवल में लाई कर रही है, कहाँ इसका स्टैंड कर रही है, तो उसको मेज़र करने के लिए वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द क्लास, मीन ऑफ द मार्क्स, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस में लाई कर रही है। तो क्या करते हैं, इनको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये कहलाता है इसका मीन। अब जैसे ये मेरे पास डेटा था, तो मुझे पता ही लग रहा था कि इसका मीन क्या होगा। इसमें 12 भी है और 2 भी है, बहुत छोटा भी है बहुत बड़ा भी है। 1 2 3 4 5, एक रह गया, सॉरी 2 रह गया हमारा, +2, तो ये 43 हो गया। 7 पॉइंट या अप्रॉक्सीमेट लगे 7.1 रिमाइंडर 1 5 अप्रॉक्सीमेटली 1 6 आ गया, ये ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, वो 2 रह गया था। तो 43/6 का मतलब 7.16, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ गया। तो अब इसमें बहुत छोटा नंबर भी है और बड़ा नंबर भी है, तो वी डोंट नो कि कहाँ स्टैंड करेगा, इसका मीन मार्क्स क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो वो निकालने के लिए हम ये निकालेंगे कि ये इस जगह पर लाई कर रहा है। तो अगर ऐसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ फिर डिवाइड करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 7 और 8 के आसपास अगर आंसर आता है, तो हम भी समझ जाएंगे कि ये क्लास एवरेज पे लाई कर रही है, मोर देन एवरेज। एवरेज मतलब 50% का अप्रॉक्स होता है, तो मोर देन एवरेज लाई कर रही है। लेस आता है तो बिलो देन एवरेज लाई कर रही है। तो ना ही क्लास बहुत अच्छी है ना ही बहुत बेकार है, दोनों ही क्राइटेरिया इसमें लाई करते हैं। तो इस तरीके के हम डेटा को मीन कहते हैं। ऐसे हम इसको मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा। तो ये तो मेथड था टू फाइंड द मीन ऑफ द डेटा ऑफ द रॉ डेटा, या फिर अनऑर्गेनाइज डेटा या अनग्रुप डेटा। एक हम फाइंड करते हैं बाय द ग्रुप डेटा, ग्रुपिंग फॉर्म में। तो उसके लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। अब xi fi क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज मेरे पास कोई डेटा गिवन है, तो पहले मैं उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लूँगा। सपोज मुझे मार्क्स गिवन है, तो मैं इसको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। मार्क्स मैं लिख लूँगा एक जगह 5 8 7 6, मान लो ये मार्क्स गिवन है मुझे, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम FI बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को।
इसको XI बोलते हैं, इसको FI बोलते हैं। सपोज जो 5 मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के आए, 8 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, 7 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स के आएंगे और 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए। ठीक है, अब आएगा लास्ट में, ये था सिग्मा FI XI, मतलब FI इंटू XI। अभी बताऊंगा सिग्मा क्या चीज़ है यहाँ पर, मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट। तो 5 2 ज़ा 10, 8 3 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7, 6 4 ज़ा 24। आपको ये ध्यान रखना कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल, मतलब मैं इसका टोटल करूंगा। 7 और 4 11, 4 15, 5 कैरी 1, 1 2 3 4 5 6 मीन 65। अब यहाँ पे वर्ड था XI इक्वल्स टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। इसका मतलब ये हुआ, सिग्मा मीन्स होता है समेसन, समेसन मतलब ऐड, जोड़, एडिशन। तो सिग्मा मीन्स सम हो रहा है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ FI और XI, XI और FI का प्रोडक्ट ये आ गया, एंड द सम ऑफ दिस, तो इसको बोलते हैं सिग्मा XI FI, FI का प्रोडक्ट और उसका जो सम आया टोटल, मतलब 65 अपॉन सिग्मा FI, इसको बोलते हैं FI का सम, तो 4 5 5 10 आ गया, अपॉन 10, इट मीन्स 6.5। तो दिस इज अ मीन ऑफ द डेटा, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, बट वी डोंट नो कि द एवरेज ऑफ द क्लास, द मीन ऑफ द क्लास कहाँ लाई कर रहा था, मार्क्स, मीन मार्क्स ऑफ द क्लास वेर इट इज़ लाई। तो हमने इससे पता लगा लिया कि जो एवरेज इसका मार्क्स लाई कर रहा है, मीन मार्क्स जो लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, 6.5 पर लाई कर रहा है। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड द मीन। इससे पहले जो समझाया था मैंने वो अनग्रुप डेटा का था, ये था ग्रुप डेटा या फिर कह सकते हैं टेबुलर डेटा। So this is the two methods to find the mean. One is by the tabular and second by the raw data or ungrouped data. In the next lecture, we have to discuss some more queries about this. So today we have to end this class. Thank you.